وہ سب کسی خواب کسی کیفیت میں ہوا تھا. شاید وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی. بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے مگر اسے اس وقت وہی صحیح لگا تھا. یہ نہ کرتی تو وہ لوگ اسے خاندان بھر میں بدنام کر دیتے. اس کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا یا پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی جو فواد کو بھی معلوم تھی اور جس کو اس نے استعمال کیا تھا. محمل کی دکھتی رکھ کے اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے. اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی اور فواد نے اسی دکھتی رکھ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا. وہ فیصلہ جذباتی تھا مگر اسے صحیح لگا تھا. پھر جو بھی ہوا جسے نیند کی حالت میں ہوا. فرشتے اس کا چہرہ کلینر سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی. پھر وہ ٹائی میں صاحب کے زیور اتار کر اس کی ماں کے زیور پہنا رہی تھی. پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی. پھر وہ اس کے سینڈل کے اسٹرپ بند کر رہی تھی. پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور پھر بہت کچھ کر رہی تھی مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی. آوازیں بند ہو گئی تھی. سارے منظر دھندلا گئے تھے. بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی. وہ خواب حسین تھا مگر اس کا دل خالی تھا. سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے. خواہشات کے جگنو کھو گئے تھے. یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے. ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں. کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو. شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں. اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا سو زیادہ دیکھ نہ پائی اور اسی جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی. جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا جو سامنے لب دل سے کھڑا تھا. براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیہہ. اس نے نگاہیں جھکا لی. اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا. کیا وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی؟ انچاہی بے وقت بیوی. اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی مگر دل اتنا خالی تھا، کوئی احساس بیدار نہ ہوا. ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھی. وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی. اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت کٹھن. وہ اس جہازی سائڈ بیٹھ کے بس میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی. فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا. وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا. اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے. وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی مگر وسوسے اور وہم ستانے لگی تھی. شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. شاید وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی. شاید وہ خفا تھا. شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے. شاید وہ اسے چھوڑ دے. شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے. بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا. وہ مایوس ہونے لگی تھی. جب دروازہ کھلا بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی. وہ اندر داخل ہو رہا تھا. اس کا دل دھڑکنا بھول گیا. یعنی وہ اب کیا کرے. وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا. السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی. وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھی گئی. وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا. تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ڈراموں سے گزری ہو. پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اب نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا. لہجہ متوازن تھا اور الفاظ یہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا. وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یک دم رکے تھے اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے. دیکھا، کیا اس میں گولیاں بھی ہیں کہ یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی. وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا. I'm sorry محمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھی. وہ کہہ رہا تھا اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی. میں ابھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے. رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی. میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا. تم پریشان نہ ہونا. وہ خیالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سا دولہا. اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھی. تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اسی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. وہ ذرا سی چوکی. جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی. پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا. محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی. الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا. اسے تب ہوش آیا جب پورٹ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی. اسے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا. یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا.
तब वो सियाह साड़ी में मलबूस थी। आज इसने सूट शलवार कमीज पहन रखी थी, उरूसी जोड़ा, उरूसी जेवरात। वो दुल्हन थी और पता नहीं कैसी दुल्हन थी। इसने तो सोचा भी न था कि वो इस कमरे में यूं कभी हुमायूं की दुल्हन बनकर आएगी। हाँ, फवाद के ख्वाब इसने देखे थे, मगर वो इसके दिल का एक छुपा हुआ राज था जिसकी खबर शायद खुद फवाद को भी न थी। और हसन, अंदर से किसी ने सरगोशी की। हसन के लिए इसके दिल में कभी कोई जज्बा नहीं उभरा था, और अच्छा ही हुआ। शाम को जब फवाद ने इसके नाम के साथ हुमायूं का नाम लिया तो कैसे वो बिल्कुल चुप हो गया था। वो जो हर वक्त मौके पे महमल के हक के लिए बोलता था, लड़ता था, इतने अहम मौके पे यूं क्यों चुप पीछे हो गया था। वो फैसला न कर सकी, और फरिश्ते, इसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी इसके लिए। वो कभी भी इसका एहसान नहीं उतार सकती। वो जानती थी इसने अपना हक छोड़ दिया। काश फरिश्ते भी कभी इसे मौका दे और इसके लिए अपना हक छोड़। इसे थक कर सर बेड ग्राउंड से टिका दिया और आंखें मूंद ली। इसका दिल उदास था, रूह बोझल थी। अब इसे राहत चाहिए थी, सुकून चाहिए था, अपने खानदान वालों की कैद से निकलने के एहसास को महसूस करने की हिस्स चाहिए थी। इसे गम से निजात चाहिए थी। इसने हौले से लबों को हरकत दी और आंखें मूंदे धीमी आवाज में दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, मैं आपकी बंदी हूँ, आपके बंदे की बेटी हूँ और आपकी बंदी की बेटी हूँ। मेरी परेशानी आपके काबू में है, मेरे हक में आपका हुक्म जारी है, आपका फैसला मेरे बारे में इंसाफ पे मबनी है। मैं आपसे सवाल करती हूँ आपके हर इस नाम के वास्ते से जो आपने अपने लिए पसंद किया, या अपनी किताब में उतारा, या अपने मखलूक में से किसी को सिखाया, या अपने इल्म गैब में आपने इसको इख्तियार कर रखा है, इस बात को कि आप कुरान अजीम को मेरे दिल की बहार और मेरी आंखों का नूर बना दें और मेरी फिक्र और गम को ले जाने का जरिया बना दें। वो दुआ के अल्फाज बार बार दोहराती गई, यहाँ तक कि दिल में सुकून उतर गया। इसकी आंखें बोझल हो गई और वो नींद में डूब गई। वो 2 दिन फरिश्ते इसके साथ रही। इन 2 दिनों में उन्होंने बहुत सी बातें की सिवाय शाम के ड्रामे के। वो ऐसा मौजू था कि दोनों ही किसी खामोश के तहत इससे एतराज बरत रही थी। फरिश्ते ने इसे बहुत कुछ बताया, अब्बा के बारे में, अपनी माँ के बारे में, हुमायूं की अम्मी के बारे में, अपनी जिंदगी, घर और पुरानी यादों के बारे में। वो दोनों चाय के मग थामे घंटों लाउंज में बैठी बातें करती रहती थी। चाय ठंडी हो जाती, शाम ढल जाती, मगर इनकी बातें खत्म न होती। पता है महमल, इधर लॉन में वो दोनों बरामदे की सीढ़ियों पे बैठी थी, चाय के मग हाथ में थे। जब फरिश्ते ने बाजू लंबा करके उंगली से सामने इशारा किया, वहाँ एक झूला था, बिल्कुल कोने में। महमल गर्दन मोड़ कर वहाँ देखने लगी जहाँ सिर्फ घास और खियानियाँ थी। हम बचपन में झूले पे बहुत खेलते थे और इसके इस तरफ तोतों का पिंजरा था। एक तोता मेरा था और एक हुमायूं का। अगर मेरा तोता इसकी डाली गई चूरी खा लेता तो वो हुमायूं बहुत लड़ता था। वो हमेशा से ही इतना गुस्से वाला था, मगर गुस्सा ठंडा हो जाए तो इससे बढ़कर लविंग और केयरिंग भी कोई नहीं था। महमल मदम मुस्कुराहट लिए सर झुकाए सुन रही थी। जब मैं 12 साल की हुई तो अब्बा ने मुझसे पूछा कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ या अम्मा के साथ। मैं वक्ती तौर पर अब्बा के साथ जाने के लिए राजी हो गई, मगर इस दिन हुमायूं मुझसे बहुत लड़ा। इसने इतना हंगामा मचाया कि मैंने फैसला बदल दिया। चाय का मग इसके दोनों हाथों में था और वो कहीं दूर खोई हुई थी। फिर जब हम बड़े हुए और मैंने कुरान पढ़ा तो हुमायूं से जरा दूर रहने लगी। वो खुद भी समझदार थी, मुझे ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता था। फिर मेरी अम्मा की डेथ हुई तो दफ्तर गाड़ी का हॉर्न बजा। वो दोनों चौंक कर इस तरफ देखने लगी। अगले ही लम्हे गेट खुला और जुल्म से स्याह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। चलो, तुम्हारा मियाँ आ गया, तुम अपना घर संभालो, मैं अपना सामान पैक कर लूं। वो हंसकर कहते हुए उठकर अंदर चली गई। महमल मुतज़्ज़िज़ सी बैठी रह गई। वो गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ आ रहा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, कैप हाथ में लिए, थका थका सा। इसे देखकर मुस्कुरा दिया, तो तुम मेरे इंतजार में बैठी हो? हूँ। वो मुस्कुराकर कहता इसके सामने आ खड़ा हुआ तो वो गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। गुलाबी शलवार कमीज पे भूरे बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए वो उदास शाम का हिस्सा लग रही थी। वो मैं कह दो कि तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? नहीं। वो चाय लाऊं? यही काफी है। इसने महमल के हाथ से मग लिया, एक घूंट भरा और मग लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जाते जाते पलटा, फरिश्ते हैं? जी वो अंदर हैं। ओके, मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, तुम टेबल लगा दो। वो कहकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी खुले दरवाजे को देखती रही। वो दरवाजा बंद करके नहीं गया था। क्या इसका मतलब ये था कि वो अंदर आ जाए? फिर भी तो वो बगैर इजाजत इसकी जिंदगी में दाखिल कर दी गई थी। अब भी चली जाए तो क्या मजायका है? इसे तलखी से सर झटका और खुले दरवाजे से अंदर चली आई। लाउंज के सिरे पे सीढ़ियों के करीब फरिश्ते और हुमायूं खड़े थे। वो अपने बैग का हैंडल थामे सिया हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटते हुए उंगली से ठोड़ी के नीचे उड़स रही थी। नहीं, बस अब मैं चलती हूँ, कल मुझे क्लास लेनी है। कम से कम कुछ दिन तो यहीं इधर रहना चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे। इनकी आवाज बेहद मध्यम थी। महमल को अपना आप इधर
बेकार लगा तो वो सर झुकाए किचन में चली आई। बिल्किस जा चुकी थी, किचन साफ सुथरा पड़ा था। इसने चूल्हा जलाया और खाना गर्म करने लगी। शायद वो भी इस घर में बिल्किस की तरह थी, एक नौकरानी। महमल, फरिश्ते ने खुले दरवाजे से झांका। महमल ने हाथ रोक कर इसे देखा। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप मत जाएं फरिश्ते, प्लीज। वो बेख्तियार और हंसी होकर इसके करीब आई। ओहो, मेरा कजन बहुत अच्छा इंसान है, तुम क्यों परेशान हो रही हो पागल। इसने होले से इसका गाल थपथपाया। महमल चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर यकायक इसकी भूरी आंखें पानी से भर गई। वो झुककर चूल्हे को तेज करने लगी। महमल, क्या हुआ है? तुम मुझे परेशान लग रही हो। वो जरा सी फिक्रमंदी से इसके पीछे आई। महमल की इस तरफ पीठ थी। फरिश्ते इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। किसी की शादी ऐसे भी होती है जैसे मेरी हुई है। बहुत देर बाद वो बोली तो आवाज में सदियों की याद थी। फरिश्ते कुछ ना बोली तो वो पलटी। फरिश्ते बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसे लगा इसने कुछ गलत कह दिया है क्या। वो गड़बड़ा गई। महमल, तुम हैरत की जगह हफ्की ने ले ली। क्या हुआ? तुम बहुत बहुत नाशुक्री हो महमल, बहुत ज्यादा। वो जिसे गुस्सा जब्त करते हुए तेजी से मुड़ गई। फरिश्ते रुके। महमल बुकलाकर इसके पीछे लपकी। वो तेजी से बाहर निकल रही थी। इसने इसे बाजू से थामा तो वो रुक गई। चंद लम्हे खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर इसकी तरफ घूमी। तुम्हें हुमायूं मिल गया महमल, तुम अब भी नाखुश हो? वो बहुत दुखी से होकर बोली थी। महमल ने बेचैनी से लब कुचला। फरिश्ते इसे गलत समझ रही थी। नहीं, मैं सिर्फ इस खुशी को महसूस करना, जस्ट स्टॉप इट। वो बहुत खफा थी। महमल चुप सी हो गई। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी हाय रही। फिर फरिश्ते ने आगे बढ़कर इसके दोनों शानों पे अपने हाथ रखे और इसे अपने बिल्कुल सामने किया। तुम वाकई नाखुश हो? नहीं, मगर इस सब से मेरा दिल कट कर रह गया है। लोगों को की रूह तक कट जाती है महमल, सब कुर्बान हो जाता है और फिर भी राजी होते हैं। और तुम अब भी शुक्र नहीं करती। इसकी सुनहरी आंखों में सुर्ख सीने में उभरी थी। इसके हाथ अभी तक महमल के कंधों पर थे। नहीं, मैं बहुत शुक्र करती हूँ, मगर बस सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। जैसे बस करो महमल। इसने तासुफ से सर झटक कर अपने हाथ हटाए और तेजी से भागते हुए बाहर निकल गई। इसे यूं ही शक सा गुजरा कि वो रो रही थी। वो दिल महसूस कर रही कि इसे शायद फरिश्ते को नाराज कर दिया था, लेकिन वो ठीक कहती थी। वो वाकई नाशुक्री कर रही थी। सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफी नहीं होता। दरअसल अजहार तो रवैये से होता है। किधर गुम हो? आवाज पे वो चौंकी। हुमायूं सामने काउंटर से टेक लगाए खड़ा बगौर से देख रहा था। वो झिझक सी गई। फरिश्ते चली गई। वो काउंटर से हटकर फ्रिज की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर पानी की बोतल निकाली। जी फरिश्ते, बहुत अच्छी है वो। इसने ढक्कन खोलकर बोतल मुंह से लगाई। बैठ कर पिए प्लीज। वो खुद को कहने से रोक न सकी। वो बोतल मुंह से हटाकर हंस दिया। फरिश्ते ने तुम्हें भी अच्छी लड़की बना दिया है। तो क्या पहले मैं बुरी थी? वो बुरा मान गई। अरे नहीं, तुम तो हमेशा से अच्छी थी, मुस्कुराकर कहते इसने फिर बोतल लबों से लगाई। महमल ने देखा वो बैठा नहीं था, अभी भी खड़ा होकर पी रहा था। खुद को बदलना भी आसान नहीं होता, मगर दूसरे को बदलना बहुत ही कठिन होता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल क्यों कट कर रह गया? उफ, वो बुरी तरह चौंकी। वो तो शावर लेने गया था, कब आकर सब सुन गया, इससे तो पता ही न चला था। वो दरअसल इसका दिल जोर से धड़का। घर से किसी ने कॉल नहीं की तो वो क्यों करेंगे कॉल? इनकी इस शादी में मर्जी शामिल नहीं थी। फरिश्ते ने बहुत मुश्किल से इन्हें राजी किया है। वो इस बात पे अभी तक गुस्से हैं। आई थिंक वो एकदम ठटक गई। फरिश्ते ने इसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। इसने कितनी मुश्किल से इनको राजी किया है तुम जानती हो। वो फिर बोतल से घूंट भर रहा था। वो दम बहुत चीजें देखी गई, क्या वो कुछ नहीं जानता? इसे नहीं मालूम कि कैसे इन दोनों ने फवाद के दिए गए कागज पे दस्तखत किए थे। फरिश्ते ने इसे कुछ नहीं बताया। मगर क्यों? तुम फिक्र मत करो, हमने ये शादी इनसे जबरदस्ती करवाई है। इनको कुछ अरसे नाराज रहने दो, डोंट वरी। तो वो वाकई कुछ नहीं जानता, वो बताए या नहीं? इसने लम्हे भर को सोचा और फिर फैसला कर लिया, अगर फरिश्ते ने कुछ नहीं बताया तो वो क्यों बताए। छोड़ो, जाने दो। सिर्फ इनके साथ जबरदस्ती हुई या आपके साथ भी? तो तुम इसलिए परेशान थी? इसने मुस्कुरा कर सर झटका। तुम्हें लगता है कोई हुमायूं दाऊद को मजबूर कर सकता है? मजबूरन कायल तो कर सकता है, नहीं कर सकता, कतई नहीं। फिर आपने क्यों शादी की मुझसे? अगर तुम चाहती हो कि मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ वगैरह वगैरह, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वाकई मुझे तुमसे कोई तूफानी किस्म की मोहब्बत नहीं थी। हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की है और मैं इस फैसले पर बहुत खुश हूँ। इसका अंदाज इतना नरम था कि वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। दिल पे लगा बोझ हल्का हो गया। यानी आप खुश हैं? ऑफ कोर्स महमल, हर बंदा अपनी शादी पे खुश होता है। बुनियादी तौर पर मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ,
लंबी बात नहीं करता और मुझे बेकार की मुबालगाराई नहीं पसंद। मैं कोई दावा करूंगा ना वादा, ये तुम वक्त के साथ देख लोगी कि तुम इस घर में खुश रहोगी। मुझे से खुलकर मुस्कुरा दी। इत्मीनान और सुकून के रबगो फहम में दौड़ गया था। तुम इस पे कुछ नहीं कहोगी? मैं क्या कहूँ, मैं बताऊँ? जी बताइए। वो बहुत ध्यान से तब मुतवज्जा हुई। सालन जल रहा है। ओह, वो बौखलाकर पलटी। देखती में से धुआं उठने लगा था। मध्यम से जलने की बू भी सारे में फैल रही थी। इसे जल्दी से चूल्हा बंद किया। वेलकम टू प्रैक्टिकल लाइफ। वो मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया। वो गहरी सांस लेकर देगची की तरफ मुतवज्जा हुई। सालन जल गया था मगर इसके अंदर हर सुबह छा गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए देगची उठाकर सिंक की तरफ बढ़ गई। महमल महमल, वो नीचे लाउंज में खड़ा सर उठाए मुसलसल इससे आवाजें दे रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है। आ रही हूँ, बस 1 मिनट। उसने ड्रेसिंग टेबल से लिप ग्लॉस उठाया और सामने आईने में देखते हुए इसे लिपस्टिक पे लगाया। लिपस्टिक चमक उठी थी। महमल, वो फिर चिल्लाया था। बस आ गई। इसने एक उजलत भरी निगाह सिंगार में इसके आईने में झलकते अपने वजूद पे डाली। टीपिंग बनासी साड़ी में मलबूस लंबे सीधे बाल कमर पे लग गिराए। कानों में चमकते डायमंड के इयररिंग्स, गर्दन से चिपका नाजुक हीरो का सेट जो हुमायूं ने इसे तैमूर की पैदाइश पे दिया था, और कलाई में व्हाइट गोल्ड के मोती जड़े कंगन, साथ मुनासिब सा मेकअप। वो मुतमईन हो गई। बेड पे लेटे तैमूर को उठाया और बाहर निकल आई। तुम इतनी देर कर रही हो, क्या इरादा बदल गया है? आखिरी फिक्रा कहते वो जेर लब मुस्कुराया। वो जो तैमूर को उठाए सहज सहज सीढ़ियां उतर रही थी, मुस्कुरा उठी। हरगिज नहीं, आखिर को अपने मैके जा रही हूँ, इरादा क्यों बदलूंगी? वो सीढ़ियां उतर आई। वो मुस्कुराकर इसे देख रहा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस बालों को जेल से पीछे किए वो बहुत शानदार लग रहा था। अच्छे लग रहे हैं तुम भी। बस इतनी सी तारीफ। इसका चेहरा उतर गया। शादी के 1 साल बाद अब मैं और क्या कहूँ। वो दोनों साथ साथ बाहर आए थे। 1 साल गुजर गया हुमायूं, पता ही नहीं चला, है ना? वो फ्रंट डोर खोलते हुए कहीं खो सी गई थी। हाँ, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। वो गाड़ी सड़क पे डालकर बहुत देर बाद बोला था, यूं लगता है जैसे कल ही की बात है। महमल ने सेठ की पुश्त से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। 1 साल गुजर भी गया, यूं जैसे पता ही ना चला हो। पूरे 1 बरस पहले वो ब्याह कर इस घर से इधर आई थी। आज 1 बरस बाद हुमायूं ने शादी की सालगिरह पर इसे इसी घर ले जाने का तोहफा दिया था। पूरा साल ना उन्होंने इसकी खबरगिरी की, ना ही महमल ने कोई फोन किया। शुरू में इसे गुस्सा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गम में ढल गया और अब इसे अपने फराइज याद आए, सला रहमी के अहकामात याद आए, तो इसने तहैया कर लिया कि अपने रिश्तेदारों से फिर से ताल्लुक जोड़े। ये ख्याल कई बार आया मगर हुमायूं जाने पे राजी ना होता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ फवाद का केस अंदर ही अंदर दबता चला गया और फिर हुमायूं ने ही एक दिन इसे बताया कि फवाद मुल्क से बाहर चला गया है, शायद ऑस्ट्रेलिया। वो भी किसी हद तक सुकून में आ गई, ना जाने क्यों। हफ्ता पहले हुमायूं को किसी जगह आगा करीम मिले। इसने महमल को बताया कि वो बहुत खुशदिली से मिले और इसे घर आने की दावत भी दी। मुनाफिकत, दुनियादारी और फिर अब वो किसी चीज का बोगत चेहरों पे सजाए रखते। फवाद तो बाहर चला गया और जायदाद इन्हें मिल गई। फिर हुमायूं दाऊद जैसे बंदे को दामाद कहने में क्या मुजायका था, बल्कि फखर ही था। एक तब्दीली और भी आई थी, पर इससे स्कॉटलैंड चली गई थी। इसे PhD करना था, खूब सारा इल्म हासिल करना था, फिर इसका थीसिस और बहुत कुछ। वो चली गई तो मस्जिद में इसकी जगह किसी और ने ले ली। और रही महमल, तो वो आज भी तैमूर को लेकर फजर की नमाज के साथ ही मस्जिद जाती थी। इसके इल्मुल किताब का अभी आधा साल रहता था। गाड़ी रुकी तो वो चौंक कर हाल में आई। वो आगा हाउस के पोर्च में मौजूद थी। वो तैमूर को उठाए बाहर निकली और गुमसुम सी इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लॉन के कोने में मसनूई आबशार बन चुकी थी। घर का पेंट बदल चुका था। पोर्च के टाइल्स भी नए और कीमती थे। लाउंज के दरवाजे पर महताब ताई और आगा जान खड़े थे। महमल और हुमायूं ने एक दूसरे को देखा और फिर जैसे गहरी सांस लेकर इनकी तरफ बढ़े। शॉल इसने एक कंधे पे डाल ली थी। भूरे सफेद बाल दोनों कानों के पीछे उड़से थे। पोर्च की बदम लाइट में भी इसके डायमंड सेट की जिगर जिगर करते हीरे चमके थे। महमल, ये तुम हो? कैसी हो? महमल महताब ताई पुरतफक्कर इस्तकबाल के साथ आके लपकी थी। महमल, मेरी बेटी। आगा जान ने इसके सर पे हाथ रखा। इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। शायद इन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया। दोनों चचियां और दूसरी लड़कियां भी वही आ गई। वो इनके साथ इनके सवालों के जवाब देती अंदर आई थी। एक तो हुमायूं की शानदार पर्सनालिटी, ऊपर से महमल का बदला सजा समरा दौलत और आशाइशों की फरावानी जाहिर करता। सरापा फिजा ने तो अदली मीठे अंदाज में तारीफ की। अलबत्ता नाइमा के माथे के बलों में इजाफा ही होता चला गया। वो अपनी जलन छुपा ना पा रही थी। लाउंज का भी हुलिया बदला हुआ था। कीमती फानूस, पर्दे, बेशकीमत डेकोरेशन पीसेस। गो के पहले भी वहाँ हर चीज कीमती होती थी, मगर अब तो जैसे पैसे की रेल पहल हो गई थी।
एक एक कोना चमक रहा था। शायद अब इन्हें खुला इख्तियार जो मिल गया था। सिद्रा पाजी किधर हैं? और आरजू सोफे पे बैठे हुए इसने मतलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाई। सिद्रा की तो दिसंबर में शादी हो गई, वो कनाडा चली गई। ताई मेहताब ने फखरिया से बताया। चेहरे पे इसे नाम बुलाने की कोई नदामत न थी। इसका दिल अंदर ही अंदर डूब कर उभरा। वो गलत थी, इनको कोई शर्मिंदगी ना थी, बल्कि नेमतों की बेपनाह बारिश ने इन्हें मजीद मगरूर कर डाला था। मेरीन का निकाह पिछले माह हुआ है, लड़का डॉक्टर है, इंग्लैंड में होता है, इसी साल शादी कर देंगे। अच्छा माशाल्लाह, वो दिल से खुश हुई, मगर उलझन बहरहाल थी। उन्होंने इसके साथ कितना जुल्म किया, फिर भी इनकी खुशियों में इजाफा क्यों होता चला गया। निदा की भी मंगनी हो गई, फिजा चच्ची को क्यों पीछे रहती, वो भी डॉक्टर से, सऊदिया की रॉयल फैमिली के डॉक्टर्स में से है। सामिया की भी आजकल बात चल रही है और आरजू यूं ही इसके लबों से फिसल पड़ा। निगाह सबसे अलग बैठी नायमा चच्ची पे जा पड़ी। इनकी कौफ में जैसे इजाफा हुआ था। रिश्तों की लाइन लगी है मेरी बेटी के लिए, हर दूसरे दिन किसी शहजादे का रिश्ता आ जाता है। वो हाथ नचाकर बहुत चमक कर बोली थी, मगर वो माने भी तो। फिजा चच्ची ने धीमी सरगोशी की। आवाज यकीनन नायमा चच्ची तक नहीं गई थी, वो खातिब महमल ही थी, जो सुनकर जरा सी चौंकी तो फिजा चच्ची मायने खैस अंदाज में मुस्कुराई। आरजू बाजी किधर है? नजर नहीं आ रही। इसने दूसरी दफा पूछा तो नायमा चच्ची उठी और पैर पटकती हुई वहां से निकल गई। इन्हें क्या हुआ? इसने हैरत से ताई मेहताब को देखा, जिन्होंने इस्तज़ाइया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बेटी का दिल आ गया किसी पे, अब मान के नहीं दे रही। इसे हैरत हुई। इसी पर सीढ़ियों से उतरते हुए कोई रुका। आहट पे महमल ने निगाह उठाई और फिर बेख्तियार शाल का पल्लू सर पे डाल गई। हसन मबहूत सा इधर खड़ा था, कफ का बटन बंद करते इसके हाथ वहीं रुक गए थे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वो कुछ दिली से मुस्कुराई तो वो चौंका, फिर सर झटक कर आखिरी जीना उतरा। वालेकुम सलाम, कैसी हो मामल, कब आई? वो इनकी तरफ चला आया था। ये तुम्हारा बेटा है या बेटी? बेटा है तैमूर। इसने झुक कर तैमूर को प्यार किया, फिर सीधा हुआ। अकेली आई हो? अरे नहीं, हुमायूं के साथ आया है, तुम्हारे आगा जान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा है, जाओ मिल लो। ताई मेहताब के कहने पर वो सर हिलाकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। हसन भाई की कहीं मंगनी वगैरह नहीं की चच्ची? वो सादा से लहजे में फिजा से मुखातिब हुई। इसे लगा वो इसका जोग लिए अभी तक बैठा होगा। अरे नहीं, हसन की तो शादी भी हो गई, मेरी भांजी तलाक है तुम्हें, इसी से आजकल वो मेके गई हुई है। सामिया सामिया, उन्होंने बेटी को पुकारा। जाओ हसन की शादी का एल्बम ले आओ। महमल को वाकईतन झटका लगा था, मगर फिर संभल गई। वो जोग लेने वाला बंदा तो ना था, कमजोर मर्द जो कभी इसके लिए मजबूत सहारा ना बन सकता था। लेकिन भला इसे इसका सहारा चाहिए भी क्यों था? कभी भी नहीं। इसकी तो हसन के साथ कभी कोई जज्बाती वाबस्तगी ना रही थी, तो अफसोस भी न था। फिर उन्होंने इसे हसन और सिद्रा की शादियों के एल्बम दिखाए। वो तो सजावट और धूमधाम देखकर हक तक रह गई। दुल्हन के रूसी लिबास और जेवरात तो एक तरफ, महज इवेंट डिजाइनिंग पे पैसा पानी की तरफ लुटाया गया था। इन्हें महमल ने वो सब कुछ याद खुद दिया था। अब भला वो क्यों इसका पुरतपाक इस्तकबाल ना करते। डिनर बहुत पुरतकल्लुफ आगा जान और हुमायूं के अंदाज से लग रहा था। इनकी गहरी दोस्ती रही, कौन कह सकता था। कभी आगा जान इस शख्स का नाम नहीं सुन सकते थे, बस इसके एक दस्तखत ने सारी दुनिया ही बदल डाली थी। फिर भी वो खुश थी, इसे मैके का मान जो मिल गया था। चाहे मुनाफकत का मलमा ओढ़े, झूठा ही सही, मगर मान तो था ना। बस चंद लम्हों के लिए वो तैमूर का बैग लेने गाड़ी तक आई थी और तब इसने लॉन में कुर्सी पर बैठी आरजू को देखा तो रुक गई। वो भी इसे देख चुकी थी, तो तेजी से उठकर इसके पास चली आई। बहुत खूब मिसेज हुमायूं, खूब ऐश कर रही हो। इसके करीब सीने पे बाजू लपेटे खड़ी, सर से पांव तक इसका जायजा लेते बहुत तंज से बोली। इसने बहुत मुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका था। अल्लाह का करम है आरजू बाजी, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। काबिल तो तुम खैर अब भी नहीं हो। ये तो अपनी चालाकी की बात होती। मुझे चालाकियाँ आती तो इस घर से ऐसे ही रुखसत होती जैसे सिद्रा बाजी हुई। और डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो। वो तेजी से झड़क कर बोली, तुम जानती थी कि हुमायूं सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फिर भी तुमने इससे शादी की। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? कि हुमायूं आपके कब से हो गए आरजू बाजी? नाम तक तो आप इनका जानती नहीं थी, वो भी मुझसे ही पूछा था। अपनी छोटी सी अकल पे ज्यादा जोर ना दो महमद डेयर। इसने उंगली से इसकी थोड़ी उठाई। और याद रखना आरजू, एक दफा किसी को चाह ले तो इसे हासिल करके ही छोड़ती है। क्यों आरजू, खुदा है क्या? इसके अंदर गुस्सा उबला था। बेख्तियार इसने अपनी थोड़ी तले इसकी उंगली हटाई। ये तो नहीं, तुम्हें वक्त ही बताएगा कि कौन खुदा है और कौन नहीं। वो तमस्कराना अंदाज में कहती मुड़ी और लंबे लंबे डग भरती अंदर चली गई। अजीब लड़की है ये, किसी के शोहर पे हक जमा रही है। हाँ, वो गम और गुस्से से खोलते हुए वापस अंदर आ गई।
ये तुम्हारी कजन आरजू, इसके साथ कोई दिमागी मसला है क्या? वापसी पे ड्राइव करते हुए हुमायूं ने पूछा। वो बुरी तरह चौंकी। क्यों, कुछ कहा इसने? इसका दिल एकदम से डर गया। हाँ, अजीब सी बातें कर रही थी। आपको कब मिली? लाउंज में तो आई ही नहीं। पता नहीं, अजीब तरीके से सब मर्दों के दरमियान आकर बैठ गई और मुझसे पे दर पे सवाल शुरू कर दिए। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, मगर इसके बाप को तो फर्क ही नहीं पड़ा। फिर वो दम बहुत सी सुन रही थी। फिर हसन को बुरा लगा और उसने इसे झिड़का के अंदर जाओ। पर शी वाज लाइक कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो अंदर जाऊं। अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। मैं तो फोन का बहाना करके उठ गया, वापस आया तो वो नहीं थी। कोई मसला है इसके साथ? पता नहीं, वो लब कुचल कर रह गई। एक बात कहूँ मामल? हूँ, कहिए। तुम ये मत समझना कि मैं लालची हूँ, मगर हक हक होता है। तुमने देखा वो लोग किस तरह तुम्हारी जायदाद पे ऐश कर रहे हैं। तुम्हें इनसे अपना हिस्सा मांगना चाहिए। रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। हुमायूं शान ने उसका कर ड्राइव करने लगा। वो हुमायूं को कैसे बताती कि इसके लिए वो अपना हक बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। अगर फरिश्ते ने छुपाया तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वो अंदर से एकदम ही बहुत अफसरदा हो गई थी। सो बैग में रखा छोटा कुरान निकाला जिसके सफेद कवर पे मीम लिखा था। मैंने ये इधर क्यों लिखा है? वो हर दफा कुरान खोलने पे अपना नाम लिखा मीम पढ़कर सोचती और फिर याद न आने पे शान झुका कर आगे बढ़ने लगती। इसने सुबह की तिलावत पे लगाए गए बुकमार्क से खोला। सबसे ऊपर लिखा था, और इसने अता किया तुमको हर इस चीज से जो तुमने इससे मांगी थी, और अगर तुम शुमार करो अल्लाह की नेमत को, इसे तुम शुमार नहीं कर सकते। बेख्तियार इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों मुस्कुरा रही हो? वो ड्राइव करते हुए हैरान हुआ था। नहीं, कुछ नहीं। इसके दिल की तसल्ली हो गई थी, सो कुरान बंद करके रखने लगी। इसे वाकई हर वो चीज मिल गई थी जो कभी इसने मांगी थी। बताओ ना, असल में मेरे लिए बड़ी प्यारी आयत उतारी थी अल्लाह ताला ने। वही पढ़कर इन पे बहुत प्यार आया था। वो सर झटक कर हंस दिया। हंसे क्यों? कम ऑन महमल, इट्स ऑल इन योर माइंड। क्या? वो हैरान हुई और उलझी भी। महमल, वो आयत तुम्हारे लिए नहीं थी, ये इल्हामी किताब है, ओके? इतना कैजुअली ट्रीट मत किया करो इसे। ये कुरान पाक है, इसमें नमाज रोजे के अहकाम है। इट्स नॉट अबाउट यू। इसने मोड़ काटा। खुली शाहरा रात के इस पहर सुनसान पड़ी थी। वो सकते के आलम में इसका चेहरा देख रही थी। तुम देखो महमल, एक ही तस्वीर को हर शख्स अपने जाविये से देखता है। मसलन इसकी खामी ढूंढेगा, शायद इसके हुस्न में खोएगा, साइंसदान किसी और तरह से देखेगा। इट्स ऑल इन योर माइंड। नहीं हुमायूं, कुरान में वही कुछ होता है जो मैं सोचती हूँ, इसलिए कि तुम वही पढ़ना चाहती हो। तुम्हें हर चीज अपने से रिलेटेड लगती है क्योंकि तुम इसे खुद से रिलेट करना चाहती हो। महमल, ये सब तुम्हारे जहन में है। ये इल्हामी किताब है, इसमें तुम्हारा जिक्र नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तब इसके मोबाइल की घंटी बजी। इसने डैशबोर्ड पर रखा मोबाइल उठाया, चमकती स्क्रीन पर नंबर देखा और फिर बटन दबाकर कान से लगा लिया। जी राना साहब। वो महुए गुफ्तगू था। महमल ने गुमसुम से निगाह गोद में सोए तैमूर पर डाली और फिर हाथों में पकड़े कुरान को देखा जिसको वो अभी बैग में रखने ही लगी। इससे लगा हुमायूं की बात ने इसकी जान निकाल ली थी, रूह खींच ली थी। वो लम्हे भर को खोखली हो गई। इसका दिल खोखला हो गया, ख्याल खोखला हो गया, उम्मीद खोखली हो गई। तो क्या इतना अरसा वो ये सब तस्वुर करती आई थी? वो वही पढ़ती थी जो वो पढ़ना चाहती थी। इसे वही दिखाई देता था जो इसकी ख्वाहिश होती। वो हर चीज का मन चाहा मतलब निकालती थी। उसका दिल जैसे पाताल में गिरता गया। हुमायूं अभी तक फोन पे मसरूफ था, मगर इसे इसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सब आवाजें जैसे बंद हो गई थी। वो गुमसुम सी हाथों में पकड़े कुरान को देखे गई, फिर दरमियान से खोल दिया। 2 सफ़े सामने रोशन हुए। पहले सफ़े की बस में लिखा था, और बेशक हमने इसे नाजिल किया, और बेशक इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। इससे आगे पढ़ा ही ना गया। वो जैसे फिर से जी उठी थी। सारी उदासी वीरानी हो हवा हो गई, फिर से मुनव्वर हो गया। अब इसे किसी का नजरिया या राय खुद पे मुसल्लत नहीं करना थी। इसे इसका जवाब नजर आ गया था। दलील मिल गई थी। मुस्कुराहट लबों पे बिखेरे इसने एहतियात से कुरान पाक संभाल कर वापस बैग में रखा और जिप बंद की। फिर सर सीट की पुष्ट से टिकाकर आंखें मूंद दी। इसे हुमायूं से कोई बहस नहीं करना थी, इसे कुछ नहीं समझाना था। वो इसे समझा ही नहीं सकती थी कि अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं मानते। सुबह नई सी उतरी थी। चिड़िया चहचहाते हुए अपनी मंजिलों की तरफ उड़ रही थी। रात बारिश खुल के बरसी थी तो सड़क अभी तक नम थी। स्याह बादल अब नीले चादर से कदे सरक गए थे और मौसम खुशगवार हो गया था। वो गेट पार करके बाहर निकली तो दरख्तों की बहार के साथ नोमी साइकिल दौड़ाता आ रहा था। वो तैमूर की प्रॉम धकेलती सड़क पे आगे बढ़ने लगी। इसका रुख नोमी की तरफ था। महमल बाजी, अस्सलाम वालेकुम। नोमी इसे देख कर चहक उठा।
तेजी से साइकिल भगाता इस तक आया। वो कॉलोनी के इन बच्चों में से था जिन्हें शाम को मामल अपने घर जमा करके नाजा पढ़ाती थी। वालेकुम सलाम, सुबह ही सुबह किधर जा रहे हो नोमी? वो रुक गई थी। हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं ना, तो सुबह फारिग होता हूँ। इसने अपनी उल्टी पी कैप सीधी की। अब वो साइकिल रोक कर इसके साथ खड़ा था। हनान और राहिम वगैरह की भी। जी बाजी, सबका ऑफ हो गया है, तो फिर यूं नहीं करें कि आइंदा फजर के बाद क्लास रख लें। बाजी मैं तो आ जाऊंगा, मगर राहिम वगैरह? इसने मुतज़्ज़ब से अपने हमसाये का नाम लिया। वो नहीं आएंगे, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। नोमी बाइक दौड़ाता दूर निकल गया। इसका इरादा सामने मदरसे जाने का था, मगर फिर नुक्कड़ पे छल्ली वाला नजर आ गया। बारिश के बाद का ठंडा सुहाना मौसम और भुने हुए दाने वो रह न सकी और प्राम धकेलती नुक्कड़ पे खड़ी रेडी की तरफ बढ़ गई। सड़क सुनसान पड़ी थी। छल्ली वाला भी खामोशी से सर झुकाए रेत गर्म कर रहा था। वो प्राम धकेलती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। इसे याद आया इसने आज सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। हालांकि वो 2 रोज पाबंदी से सुबह और शाम की दुआएं पढ़ती थी, मगर आज जाने कैसे रह गई। वो हौले हौले तस्बीह पढ़ने लगी, तभी फासला सिमट गया और वो रेडी के पास आ पहुंची तो ध्यान बढ़ गया। एक छल्ली बना दो और साथ में 5 रुपए के दाने भी, और मसाला भी जरा ज्यादा हो। इसकी तस्बीह अधूरी रह गई। बूढ़ा छल्ली वाला सर हिलाकर छल्ली भूनने लगा। वो माहूलियत से इसे भूनते देखने लगी। जहन के किसी गोशे में उस रोज आरज़ू की कही बातें गूंजने लगी। वो बार बार इसे जहन से झटकता चाहती थी, मगर यूं ही एक धड़का सा दिल को लग गया। बस ऐसे ही इसका दिल घबरा सा जाता। वो नींद में डर जाती। जाने क्या बात थी। 10 रुपए हुए बीबी? बूढ़े शख्स की आवाज से वो चौकी, फिर सर झटक कर हाथ में पकड़ा पाउच खोला। अंदर पैसे और चंद कागज बिल वगैरह रखे थे। इसने 10 का नोट निकालना चाहा तो एक कागज जो नोट के ऊपर उड़स कर रखा गया था उड़कर दूर सड़क पे जा गिरा। एक मिनट, वो 10 का नोट इसके हाथ पे रखकर तैमूर के प्राण वहीं छोड़े दौड़ती हुई गई जहाँ सड़क के बस में वो मुड़ा तोड़ा सा कागज पड़ा था। इसने झुक कर कागज उठाया और उसे खोल कर पढ़ा, फिर तहरीर देख कर मुस्कुरा दी। अगले ही पल सामने सड़क के कोने से आती गाड़ी की आवाज आई। इसने घबरा कर सर उठाया। गाड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। वो भागना चाहती थी, एक ही जस्ट में उड़कर सड़क पार करना चाहती थी, मगर मौका न मिला। तेज हॉर्न की आवाज थी और कोई चीख रहा था। इसके पाँव हरकत करने से इनकारी थे। इसने गाड़ी खुद को पुल से टकराते देखा, फिर इसने खुद को पूरे कद से गिरते देखा। शोर था, बहुत शोर। इसने अपनी चीखें सुनी। अपने सर से निकलकर सड़क पर गिरता खून देखा, बहता हुआ लाल खून, बेहद लाल। इसकी कलाई वहीं इसके चेहरे के साथ बेदम सी गिर गई। इसने हाथ खोल दिया। मुड़ा थोड़ा सा कागज निकलकर सड़क पर लुढ़क गया। इसने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठे होते देखा। कहीं दूर कोई बच्चा रो रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा, हलक फाड़ कर दूर, बहुत दूर। जो आखिरी बात इसके डूबते जहन ने सोची थी वो ये थी कि आज इसने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। इसका जहन घुप अंधेरे में डूब चुका था। तारीकी, स्याह काली, मुहीब सी तारीकी, बिना रंग के, बिना शोर के, खामोशी सी तारीकी। अंधेरे में अंधेरा, पर्दे पे पर्दा। उसका जहन जमान और मकान की कैद से आजाद हो चुका था। पानी पे बह रहा था, बादलों पे तैर रहा था। जमीन और आसमान के दरमियान, न ऊपर न नीचे, हवा की बीट कहीं मोहल्लक, कहीं दरमियान में किसी तैरते बादल पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैरते बादल को करार आया। जरा सा झटका लगा और बादल किसी बुलबुले की तरह फट कर हवा में तैलील हो गया। हर तरफ रोशनी बढ़ती गई, तेज पीली रोशनी। इसने हौले से आंखें खोली। धुंधला सा एक मंजर सामने था। सफेद दीवारें, सफेद छत, छत से लटकता पंखा। इसके 3 पर थे। हौले हौले वो एक दायरे में घूम रहे थे। दायरे दायरे, बार बार दायरे। वो कितनी ही देर यकटक छत को देखे गई। वो कौन थी, किधर थी, क्यों थी? वो खाली खाली निगाहों से छत को देखती रही, फिर यकायक इधर उधर देखना चाहा। इर्द गिर्द सफेद दीवारें थी। करीब ही एक काउच रखा था, तो पाइप पे सूखे फूलों का गुलदस्ता सजा था। इसने कोहनियों के बल उठना चाहा, मगर जिस्म जैसे बेजान सा हो गया था, या शायद वो बेहद थक चुकी थी। इसने कोशिश तर्क कर दी और अपने बाजुओं को देखा, जिनमें बेशुमार नालियां सी पेवस्त थी। हर नाली किसी न किसी मशीन के सिरे पे जा रुकती थी। वो शायद अस्पताल का कमरा था, और वो खुद शायद, बल्कि यकीनन महमल इब्राहिम थी। खुद को कैसे भूला जा सकता है भला? आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्तें जहन के हर कोशिश से उभरने लगी। एक एक बात, एक एक चेहरा इसे याद आता गया। थक कर इसने आंखें मूंद दी। आखिरी बात भला क्या हुई थी? किस चीज ने इसे इधर अस्पताल पहुंचाया था? शायद कोई एक्सीडेंट, और इसे धीरे धीरे सब याद आता गया। वो भुट्टा लेने सड़क के इस पार गई थी। इसके साथ नौमी भी था। वो साइकिल चला रहा था। वो नजरों से ओझल हुआ ही था कि वो रेहड़ी वाले के पास चली गई। फिर कुछ हुआ था। इसे टक्कर लगी थी। खून, बिखरे कागज, रोता बच्चा। बच्चा? इसे चौंक कर आंखें खोली, फिर इधर उधर देखा। कमरा खाली था।
वो इधर अकेली थी, मगर वो रोता बच्चा, वो आवाज जो इसे आखिरी पल तक सुनाई दी थी, तैमूर। तैमूर रो रहा था। हाँ, इसे याद था, कहाँ है तैमूर? इसने मतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। इसी पल दरवाजा खुला। सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में ट्रे थी। वो तेजी से ट्रे लिए बेड की तरफ बढ़ी, फिर इसे जागते देख कर ठटकी। ओह, शुक्र है आपको होश आ गया, वो हैरान सी कहती इसके करीब आई। तब ही खुले दरवाजे से एक बच्चा नजर आया। 6-7 बरस का खूबसूरत सा बच्चा, शायद वो नोमी का हमसाया राहिम था। हाँ, वो राहिम ही था, या शायद राहिम का छोटा भाई। वो फैसला न कर पाई। आर यू ऑलराइट? नर्स ने आहिस्ते से इसके हाथ को छुआ, फिर हैरत से पूछा। वो बिना जवाब दिए बच्चे का चेहरा देखती रही, जो अजीब इन्हमाक से इसे देख रहा था। ये शायद वो लड़का था जिसको वो शाम में नाज़रा पढ़ाती थी। हम आपकी सिस्टर को बुलाता है अभी। नर्स खुशी से चमकती बाहर को भागी। वो अभी तक बच्चे की आंखों में देख रही थी, जिनमें अजीब सी खौफ थी, और नन्ही पेशानी पे जरा से बल। उसको अजीब तनफ्फुर भरी निगाहों से देखता काउच पे आ बैठा और कोहनियां घुटनों पे रखे कर दोनों हथेलियों में चेहरा गिरा दिया। वो अभी तक इसी तरह इसे देख रही थी। राहिम, इसने पुकारा तो इसे अपनी आवाज बहुत हल्की फटी फटी से सुनाई दी। बच्चा इसी तरह इसे देखता रहा। राहिम, इसने फिर आवाज दी। वो बमुश्किल बोल पा रही थी, मैं सनी हूँ। फिर लम्हा भर को रुक कर अजीब से तनफ्फुर से बोला, आई डोंट लाइक यू, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। सनी, वो दंग रह गई। इस बच्चे को वो रोज नाज़रा पढ़ाती थी, वो शायद राहिम का छोटा भाई था, फिर वो ऐसे बात क्यों कर रहा था? इसी पल दरवाजा जोर से खुला। महमल ने चौंक कर देखा, दरवाजे पे फरिश्ते खड़ी थी। सयाबाए पे हजाब चेहरे के लपेटे वो बेयकीनी से बिस्तर पे लेटी महमल को देख रही थी। फरिश्ते वो अपनी जगह जामित रह गई। फरिश्ते तो बाहर थी, वो पाकिस्तान का भाई। ओह मेरे अल्लाह! महमल, इसने बेख्तियार अपने मुंह पे हाथ रखा। कितने ही पल वो बेयकीन से खड़ी रही। इसका चेहरा काफी कमजोर हो गया था। महमल एकदम आगे बढ़कर इसे बेकरारी से इसका चेहरा छुआ। तुम मुझे देख सकती हो महमल, तुम मुझे पहचानती हो, तुम बोल सकती हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगी? फरिश्ते, तुम कब आई? मैं फरिश्ते मुताजिब नजरों से इसे तक रही थी। मुझे तो काफी वक्त हो गया महमल। मैंने तुमसे इतनी बातें की, तुमने सुना क्या? वो उलझ सी गई। नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। मैं तो वो रुक कर अटक कर बोल रही थी। मैं तो सुबह रेडी वाले के पास गई थी, मुझे गाड़ी ने टक्कर मार दी, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। पर इसे बेयकीनी से फैली आंखों से इसे टुकर टुकर देख रही थी, गोया इसके पास कहने को कुछ भी न था। फरिश्ते बोलो। इसे फरिश्ते की हैरत तो बेयकीनी परेशान कर रही थी। कहीं कुछ गलत था? महमल, तुम। वो कुछ कहते कहते फिर रुक गई, जिसे समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहे। यू एंड यू आर ओवर एक्टिंग। वो छोटा लड़का बेजारी से कहकर उठा था। फरिश्ते ने चौंक कर इसे देखा। क्या हिजाब में दमकते फरिश्ते के चेहरे पे हल्की सी नागवारी उभरी। सनी, प्लीज बेटा जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, आप दोनों चली जाएं। फरिश्ते, ये कौन है? क्यों जिद कर रहा है? वो उलझ कर पूछ रही थी, मगर फरिश्ते दूसरी तरफ मुतवज्जह थी। आई डोंट वॉन्ट टू गो, वो बदतमीजी से चीखा था। शट अप तैमूर एंड गेट आउट। तुम देख रहे हैं ना मैं मामा से बात कर रही हूँ, फरिश्ते कह रही थी, और इसे लगा किसी ने इसके ऊपर ढेरों पत्थर लुढ़का दिए हो। तुमने तैमूर कहा? फरिश्ते, वो साकित रह गई थी। हाँ, शी इज नॉट माई मॉम। वो सर झटकता उठकर बाहर गया और अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद किया। तुमने तैमूर कहा? नहीं, ये तैमूर नहीं। मेरा तैमूर कहाँ है? इसका दिल बंद हो रहा था। कहीं कुछ गलत था, कहीं कुछ बहुत गलत। फरिश्ते ने आहिस्ता से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। इसकी सुनहरी आंखों में गुलाबी सी नमी उभर आई थी। महमल, तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या याद नहीं? मेरा बच्चा कहाँ है? वो घुटी घुटी सी सिसक उठी। कुछ था जो इसका दिल हिला रहा था। महमल, इसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़कने लगे। बेख्तियार इसने महमल के हाथ थाम लिए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? फरिश्ते, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे सर पे चोट आई थी, तुम्हारा स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ था। फरिश्ते, मेरा बच्चा। इसकी आवाज टूट गई। वो बेकरारी से फरिश्ते की भीगी आंखों को देख रही थी। महमल, तुम बेहोश हो गई थी, तुम कोमा में चली गई थी। मुझे पता है सुबह मेरा एक्सीडेंट, और ये कहते हुए भी वो जानती थी कि वो सुबह नहीं था। वो सुबह नहीं था, वो 7 साल पहले था। वो सत्य के आलम में इसे देखती रह गई। वक्त 7 साल आगे बढ़ गया है। तुम्हें कुछ याद नहीं? वो सारी बातें जो मैं इतने बरस तुमसे कहती रही, वो दिन, वो रातें जो मैंने इधर तुम्हारे साथ गुजारी, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो पत्थर का बुत बन गई थी। फरिश्ते को लगा वो इसकी बात नहीं सुन रही। डॉक्टर्स कहते थे तुम कभी भी होश में आ सकती हो। हमने बहुत वेट किया तुम्हारा महमल।
बहुत ज्यादा आंसू मुतवातिर इसके दमकते चेहरे पे गिर रहे थे। वो गुमसुम सी इसे देखे गई, गोया वो वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे उठ जाने की बहुत दुआएं की महमल। मैंने अपना पीएचडी भी छोड़ दिया, तुम्हारे एक्सीडेंट के दूसरे महीने में आ गई थी। 2 माह रही, फिर वापस गई, मगर दिल ही नहीं लगा सका। मैं पढ़ ही नहीं सकी। फिर मैंने सब पढ़ाई छोड़ दी और तुम्हारे पास आ गई। इतने बरस महमल, इतने बरस गुजर गए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं महमल। फरिश्ते ने हौले से इस पत्थर के मुजस्मे का शाना हिलाया। वो जरा सी चौकी, फिर इसके लब कपकपाए। मेरा मेरा तैमूर, ये तैमूर था ना, हम इसे सनी कहते हैं। मगर वो कैसे मानती? वो जिसे कोई कॉलोनी का बच्चा समझी थी, वो इसका अपना बच्चा था। ये कैसे मुमकिन था? ऐसे तो लगा था कि वो बस एक दिन की रसोई है, या फिर शायद दिन का एक हिस्सा। फिर सदियां कैसे बीत गई, इसे क्यों नहीं पता चला? और तैमूर नहीं, उसे काट में लेटा अपना नौमौलूद बच्चा याद आया। फरिश्ते, वो मेरा बच्चा है। ओ खुदाया, इसने बेयकीनी से आंखें मूंद कर खोली। वो इतना बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है महमल, क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त हर चेहरे पर अपना निशान छोड़ जाता है। हुमायूं, इसके लब फड़फड़ाए। हुमायूं कहाँ है? नर्स ने जब बताया तो मैंने इसे कॉल कर दिया था, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। वो मीटिंग में था, रात तक आ सकेगा नहीं। फरिश्ते, तुम इसको बुलाओ, प्लीज बुलाओ। इससे कहो महमल जाग गई है, महमल इसका इंतजार कर रही है। वो मेरे एक फोन पर ही दौड़ आता था। वो 7 साल पहले की बात थी महमल। वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलता है, लोग भी बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो खोई खोई सी बोली। अजीब बेयकीनी थी महमल। परेशान मत हो प्लीज, देखो वक्त हुमायूं को नहीं बदल सकता। मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है, मेरा तैमूर ऐसा नहीं है। वो हजानी अंदाज से चिल्लाई। इतनी बेयकीनी थी कि इसे रोना भी नहीं आ रहा था। फरिश्ते तासुफ से इसे देखती रही। अभी इसे संभालने में वक्त लगेगा, वो जानती थी। फरिश्ते चली गई और वो मुंह पे चादर डाले आंखें मूंदे लेट ही रही। इसे यकीन ना था कि फरिश्ते ने इससे सच बोला है। इसे लग रहा था कि ये सब एक भयानक ख्वाब है, और अभी वो आंख खोलेगी तो वो ख्वाब टूट जाएगा। फिर इसने आंख ही न खोली। इसे डर था कि अगर ख्वाब ना टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक्त गुजरा, वो लम्हों का हिसाब न रख पाई, और अब कौन से हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाजे पे हौले से दस्तक हुई। उसने लम्हे भर को आंखें खोली। हवा से चेहरे पे बड़ी चादर सरक गई थी। मंजर साफ वाज़ेह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। इसकी निगाहें वहीं ठहर सी गईं। वक्त थम गया, लम्हे साकिन हो गए। वो इसे वैसे ही लगा था, इतना ही वजिया और शानदार, मगर इसका जज्बात से आई चेहरा, इस पे छाई संजीदगी नहीं, वो शायद वैसा नहीं रहा था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पाइंते के साथ रुक गया। हुमायूं, वो तड़प कर रह गई। बेख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी हो? वो पाइंते के करीब खड़ा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज में भी अजीब सदनाहरी थी। हुमायूं, वो रोने लगी। ये सब क्या है? ये कहते हैं कि इतने साल गुजर गए, मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं डॉक्टर कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे। वो कलाई पे बंदी घड़ी देख रहा था, जैसे जाने की जल्दी हो। इसके लहजे में कोई नाराजगी का आंसर नहीं था, बल्कि बहुत हमवार लहजा था, लेकिन शायद इनके दरमियान कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगी ना हुमायूं? जैसे वो तसल्ली के बोल सुनना चाहती थी। हाँ। वो अब जेबों में हाथ डाले तनकीदी नजरों से अतराफ का जायजा ले रहा था। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? हुमायूं और तैमूर, वो इसके साथ यूं क्यों कर रहे थे? हुमायूं, मुझसे बात तो करें। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मुतवज्जा हुआ। लम्हे भर को निगाह इस पे झुकाई। इसके आंसू थम गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। ये तो मोहब्बत की निगाह ना थी, ये तो खैरात थी, भीख थी। वो चंद लम्हे मुंतज़िर सा इसे देखता रहा, फिर वापस जाने को मुड़ा। इसी पल दरवाजे में फरिश्ते का सरापा उभरा। वो हाथ में फ्रूट बास्केट पकड़े तेजी से आ रही थी। हुमायूं इसके एक तरफ से निकलकर बाहर चला गया। फरिश्ते ने पलटकर इसे जाते देखा। हुमायूं अभी तो आया था, चला भी गया। क्या कह रहा था? उचंबे से कहते हुए इसने गर्दन इसकी जानिब मोड़ी। महमल के चेहरे पे कुछ था कि वो लम्हे भर को चुप सी हो गई। फिक्र मत करो, वो हर किसी से ऐसे ही बिहेव करता है। वो माहौल को खुशगवार करने के लिए कहती आगे बढ़ी और फ्रूट बास्केट साइड टेबल पर रखी। मगर मैं किसी तो नहीं थी फरिश्ते। वो अभी तक नम आंखों से खुले दरवाजे को देख रही थी। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम क्यों फिक्र करती हो? मगर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? इसकी आंखें फिर से डुबडुबाई। महमल देखो, इस तब्दीली ने वक्त लिया है, तो इसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। तुम इसको कुछ वक्त दो। वो इसके रेशमी भूरे बाल नरमी से हाथ में पकड़े ब्रश कर रही थी। वक्त वक्त वक्त, वो एक ही तकरार हर जगह दोहराई जा रही थी। इस वक्त ने क्या कुछ बदल दिया था इसे? इसका अंदाजा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था।
वो अपने निचले धड़ को हरकत नहीं दे सकती थी, वो अपने पाँव नहीं हिला सकती थी, वो उठकर बैठ नहीं सकती थी, खुद खाना नहीं खा सकती थी, अपने पाँव पे खड़ी होने के काबिल नहीं रही थी। ये सब क्या हो गया था? इस दिन जब मैं घर से निकली थी तो मैंने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। ये सब इसीलिए हुआ है फरिश्ते कि मैं दुआ पढ़े बगैर घर से निकली थी, है ना? वो नरमी से इसके बात सुलझा रही थी जब वो भीगी आंखों और उनके गले से कहने लगी। फरिश्ते गहरी सांस ली, कुछ कहा नहीं। ना था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में तो इसने इसे पूरा किया। बहुत धीरे से इसके दिल में किसी ने सरगोशी की। वो यकलख चौंक सी गई। न था इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में तो इसने इसे पूरा किया। इसने सुनने की कोशिश की, कोई इसके अंदर मुसलसल ये अल्फाज दोहरा रहा था, धीरे मधुर आवाज, तरन्नुम और सोच से पूर्ण। इसका दिल धड़कना भूल गया, वो एकदम सन्नाटे में आ गई। ये अल्फाज, ये बात, ये सब बहुत जाना पहचाना था। ये आयत यूसुफ 13वां सिपारा, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गालिबन नजर बद से बचाव के लिए एहतियातन शहर के मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होने की ताकीद की थी, तो इस पे अल्लाह ताला ने जैसे तबसरा किया था कि इन भाइयों को अगर अल्लाह की मर्जी और मंशा होती तो फिर अल्लाह के फैसले से कोई भी ना बचाता। मगर वो एहतियात तो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की एक हाजत थी, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इसे पूरा किया। एक खामोश लम्हे में इस पे कुछ आश्कार हुआ था। ये जो हुआ था इसे ऐसा ही होना था। वो जो कर लेती ये अल्लाह की मर्जी थी, हो कर रही, ये इसकी तकदीर थी। शायद इसकी दुआओं ने इसे किसी बड़े नुकसान से बचा लिया हो, मगर क्या इससे भी कोई और बड़ा नुकसान हो सकता था? माजूरी, बेजार शोहर, बिदकता हुआ बच्चा, अब क्या रह गया था जिंदगी में? कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। किसी ने फिर इसको जरा खफगी से मुखातिब किया था। वो फिर से चौंकी और कदरे मुस्तरब हुई। ये कौन इसे बार बार अंदर ही अंदर मुखातिब करता था? ये कौन था? फरिश्ते, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, वो बहुत बेबसी से बोली। तो फरिश्ते का इसके बालों में ब्रश करता हाथ रुक गया। फिर इसने जैसे समझ कर सर हिला दिया। ओके, इसने ब्रश साइड पे रखा और उठकर बाहर निकल गई। हमने बसाया तुमको जमीन में और हमने तुम्हारे लिए जिंदगी के सामान बनाए। कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। सूरह आराफ। कोई इसके अंदर ही अंदर इसे झंझोड़ रहा था, पुकार रहा था। इसके अंदर बाहर इतना शोर था कि वो सुन न पा रही थी, समझ न पा रही थी। फरिश्ते गई तो इसकी आंखें मूंद ली। अब इसके हर सू अंधेरा उतर आया था, खामोशी और तन्हाई। इसे गौर से सुनना चाहा। चंद मिली जुली आवाजें बार बार गूंज रही थी। हम तुम में से हर एक को आजमाएंगे, शर के साथ और खैर के साथ। कह दो, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। इसके जहन में जैसे जमाका सा हुआ, एकदम अंदर बाहर रोशनी बिखर गई। इसने झटके से आंखें खोली। मेरा कुरान, मेरा कलाम है पाक, मेरा मुसहिफ। वो कभी कुरान के बगैर घर से नहीं निकलती थी। इस रोज भी वो इसके हाथ में था, बल्कि बैग में रखा था। जब वो एक्सीडेंट के बाद इधर लाई गई होगी तो यकीनन वो भी साथ आया होगा। फिर इसे इधर उधर होना चाहिए, मगर 7 साल, इसे याद आया वो 7 साल दरमियान में आ गए थे। इनके पीछे तो हर शे गोया धूल में गुम हो गई थी। ओ खुदाया, वो क्या करे? इसे थक कर आंखें मूंदी। ये ऐसी अजीब सी बात थी जिसपे से यकीन ही नहीं आता था। वो जितना सोचती और उलझ जाती। तभी दरवाजा होले से खुला। इसने चौंक कर आंखें खोली। तैमूर दरवाजे में इस्तादा था। जीन शर्ट पहने, इसके बुरे बाल माथे पे कट कर गिर रहे थे। इसकी नाक बिल्कुल हुमायूं की तरह थी, खड़ी मगरू नाक और आंखें महमल की सी, सुनहरी चमकते कान जैसी, और माथे के वो बल वो जाने कैसे जैसे थे। तैमूर इसको देखकर महमल की आंखें जगमगा उठी थी। वो उसका बेटा था, उसका तैमूर था। इधर आओ बेटा। वेयर इज माई डैड? मेरे डैड कहाँ हैं? वो इसी तनफ्फुस से छुपते हुए अल्फाज में बोला था, मुंह फट अखड़ बदतमीज। अगर वो इसकी माँ न होती तो ये 3 अल्फाज इसके जहन में इसके मुतालिक फौरन उभरते। वो अभी आए थे, फिर चले गए। तुम मामा से नहीं मिलोगे? इसने ममता से मजबूर अपने बाजू फैलाए। नहीं। इसने बाहर निकलकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वो सुन होकर रह गई। बाजू आहिस्ता से पहलू में आ गिरे। ये 7 साल का बच्चा, इसके दिल में इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट कैसे आ गई? क्या कसूर था इसका कि वो यूं इससे मुतनफिर था? और सिर्फ इससे नहीं बल्कि फरिश्ते से भी। बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर वो कब रोते सो गई इसे पता भी ना चला। फिजियोथेरेपिस्ट इसे एक्सरसाइज कराने की नाकाम कोशिश करके जा चुकी थी। वो इसी तरह दुनिया से बेजार आंखों में बाजू रखे लेटी रही। ये दायां बाजू तो बिल्कुल ठीक काम करता था, बायां अलबत्ता जरा सा ढीला था, मगर उम्मीद थी कि वो अब भी जल्द ही ठीक हो जाएगी।
टांगों के मुतालिक कुछ कहने से डॉक्टर्स अभी कासे थे। कभी वो कहते कि फिजियोथेरेपी से आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी, और बाज़ औक़ात वो इस सब का इन्हिसार इसकी अपनी क़ुव्वत इरादी पर गर्दानते। वो क़ुव्वत इरादी जिसको इस्तेमाल करने की सही अभी वो नहीं कर रही थी। एकदम से फूलों की महक नथनों से टकराई तो इसने धीरे से बाजू हटाया और आंखें खोली। फरिश्ते बड़ा सा महकते सुर्ख गुलाबों का बुके लिए अंदर दाखिल हुई थी। इसके सियाह स्कार्फ में मुखीत चेहरे पे वही मखसूस ठंडी सी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम माय सिस्टर, कैसी हो? और ये फिजियोथेरेपिस्ट को क्या तुमने भगा दिया? वो कांच के गुलदान में गुलदस्ता लगाते हुए फौरी बोली। वो मुझे किसी फिजियो की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लोग मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे? मैंने डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे थे कि तुम्हें अनकरीब घर शिफ्ट कर देंगे, शायद 1 हफ्ते तक। तुम मेंटली बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें मजीद अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है। वो फूल सेट करके शॉपर से कुछ और निकालने लगी और तैमूर नहीं आया। इसे आना था क्या? इसका दिल डूब कर उभरा। हाँ, मैं इसे रोज साथ ही लाती हूँ, पता नहीं शायद लॉन में बैठा हो, अभी आ जाएगा। वो कहकर खुद ही शर्मिंदा हुई। महमल ने फिर से चेहरे पे बाजू रख लिया। वो अब यूं ही सारी दुनिया से छुप जाना था चाहती थी। फरिश्ते रोज सुबह आती थी, फिर दोपहर में चली जाती, तो 2 घंटे बाद फिर बात तैमूर को साथ ही आती। वो बाहर ही फिरता रहता, अंदर ना आता। फिर असर के वक्त फरिश्ते चली जाती। ग़ालिबन इसे मस्जिद जाना होता था। रात को फिर एक चक्कर लगा लेती। छुट्टी के दिन वो तैमूर को सुबह से ही साथ ले आती और बाकी दिनों में इसके स्कूल के बाद दोपहर में लाती। हाँ, रात को तैमूर इसके साथ नहीं आता था, और हुमायूं वो तो बस एक ही दफा आया था। फिर इसके बाद हमेशा वो शायद बिजी होगा वाला जवाब फरिश्ते खूब शर्मिंदा कर देती। वो दिन में 3-3 चक्कर लगाया करती थी, गोया गन चक्कर बनी रहती। महमल का हर छोटा बड़ा काम करती, नहीं तो इसके साथ बेटी तसल्ली और प्यार की बातें करती रहती। अब भी वो जाने क्या चीज उलट पुलट कर रही थी। महमल को खट खट की आवाजें आ रही थी, मगर वो यूं ही बेजार सी मुंह पे बाजू रख कर लेटी रही, और फिर आहिस्ता से वो मुतरन्नम आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। सब तारीफ इस अल्लाह की है, वो जात जिसने अपने बंदे पे किताब उतारी और इसमें कोई पेड़ नहीं बनाया। इसने झटके से बाजू हटाया। फरिश्ते टेप रिकॉर्ड सेट करके हाथ में पकड़े कैसेट को कवर बंद कर रही थी। महमल की तरफ इसकी पूछ थी दुरुस्त करने वाली किताब, ताकि वो अपने पास मौजूद सख्त अज़ाब से डराए और खुशखबरी दे इन मोमिनों को जो अच्छा काम करते हैं कि बेशक इनके लिए अच्छा अजर है। वो ये आवाज़ लाखों में पहचान सकती थी। कारी मशारी की सूरह कहफ वो रहने वाले हैं इसमें हमेशा हमेशा, और डराए इन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। लफ्ज़ बूंद बूंद इसकी समात में उतर रहे थे। आज जुम्मा था और वो हमेशा जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ा करती थी। ना इनके पास इसका इल्म है और ना ही इनके आबाओ वजदाद के पास है। इनके मुंह से ये बहुत बड़ी बात निकलती है। वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। खट से फरिश्ते ने स्टॉप का बटन दबाया तो आवाज रुक गई। इसी तरफ का फरिश्ते को देखा। लगाई ना, बंद क्यों कर दी? ओह, तुम जाग रही थी? वो चौंक कर पलटी। मैं समझी तुम सो गई हो, मैंने सोचा तुम्हें तंग ना करूं। कोई कारी मशायरी की सूरह कहफ से भी तंग हो सकता है भला? इसमें तो मेरी जान मुकीद है फरिश्ते। आपको याद है जब जुम्मे को क्लास में सूरह कहफ शुरू हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ही ये मेरे आंसू गिरने लगते थे। तुम्हारे आंसू अब भी गिर रहे हैं मामल। वो आहिस्ता से इसके करीब आ बैठी और इसके दोनों हाथ थाम लिए। मामल का चेहरा आंसू से भीगा था। मैं जानती हूँ तुम तैमूर और हुमायूं की वजह से अपसेट हो। भूल जाऊँ इनकी नाकदरियां महल वो ना समझ है, इनकी वजह से अपने चैन और सुकून बर्बाद ना करो। वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे, मगर एक बात तुम्हें जहन में बिठा लेना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी इन पे इंहिसार नहीं करती। तुम इनके बगैर नहीं मर जाओगी। इनके बगैर जीना सीखो महमल, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। और ठीक है, इसने तेजी से बात काटी, मगर अभी आप सूरह यूसुफ लगाए ना, प्लीज मुझे सुनना है। फरिश्ते जरा सी हैरान हुई, फिर गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, मैं लगाती हूँ। और मेरा कुरान? हाँ, वो मैं कल ढूंढ के ले आऊंगी। अभी तुम ये सुनो, मैं तैमूर को ढूंढती हूँ। इसने प्ले का बटन दबाया और खुद बाहर निकल गई। बस शायद तुम इनके पीछे अपने आप को हलाक करने वाले हो अगर वो इस कलाम के साथ ईमान ना लाए। बहुत अफसोस के साथ, बेशक जो भी जमीन पे है हमने इसे इसकी खूबसूरती के लिए बनाया है, ताकि हम इन लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन सबसे अच्छे काम करता है, और बेशक हम इसको बंजर साफ मैदान बनाने वाले हैं। उसने आंखें मूंद ली। आंसू आहिस्ता आहिस्ता इसके तकिए को भिगोने लगी थी। सूरह कहफ के साथ इसे वो तमाम मनाज़िर याद आने लगे जो कभी इसकी जिंदगी का हिस्सा थे। संगे मरमर की चमकती राहदारियां, रोशनियों से घिरा हॉल जो ऊंचे सफेद सतूनों पे खड़ा था, मस्जिद के बरामदे के सामने घर से भरा लॉन, वो पिंक स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर जो तेजी से नोट्स लेने में मसरूफ होती,
लाइब्रेरी की ऊंची ग्लास विंडोज जिससे फैसल मस्जिद दिखाई देती थी, वो कॉलोनी की सड़क पे दरख्तों की घनी बहार यादों का एक तवील सिलसिला था जो उमड़ कर इसके जहन में आया था। डॉक्टर ठीक कहते थे, वो जहनी तौर पर बिल्कुल फिट है। सूरह कहाफ खत्म हुई तो कैसेट रुक गई। इसने बेबसी से टेप को देखा, वो इससे खासे पासे पे थी, वो उठकर इसको रीप्ले भी नहीं कर सकती थी। कैसी बेबसी थी, कैसी लाचारी थी। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, हर राह बंद होती दिखाई देने लगी, हर दरवाजे के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे लगा वो अब हमेशा के लिए अंधेरे बंद कहफ में मुकीद रहेगी, तैमूर और हुमायूं से दूर, बहुत दूर। सुबह वो सोकर खासी देर से उठी, रात भर सो न सकी तो फजर के करीब ही आंख लगी थी। सिस्टर मेरियन साइड टेबल पर दवाएं रख रही थी, इसे जागते देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिसेस हुमायूं, हाउ आर यू? फाइन, वो जबरन मुस्कुराई। किसका नाम इसके नाम के साथ जुड़ता था, वो खुद ही इससे दूर भागने लगा था। आपकी सिस्टर सुबह आई थी, आप सो रही थी, वो ये बुक देख कर गई हैं। इसने साइड टेबल पर रखी किताब की तरफ इशारा किया। फरिश्ते आई थी, वो चौंकी, फिर इसके इशारा करदा किताब की तरफ देखा तो ठहर सी गई। सफेद सादा जिल्द वाली दबीज किताब, उसका सांस रुक गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मुसहफ कुरानी, वो जेर लब बड़बड़ाई, ये आपका कुरान है मैडम? सिस्टर मेरियन ने इसे मुतवज्जा पाकर एहतियात से कुरान उठाकर इसके सामने किया। इसने बेकरारी से इसे थामा और फिर सीने से लगा लिया। यू लव योर होली बुक टू मच राइट? आपको अपनी मुकद्दस किताब बहुत अजीज है ना? वो मुस्कुराकर कहती इसे बैठने में मदद देने लगी। ऑफ कोर्स सिस्टर, वो बहुत खुश थी। फिर वो बैठ गई तो सिस्टर मेरियन ने इसके पीछे तकिए सेट कर दिए। फिर सिस्टर जाने कब वहां से गई, इसे पता भी नहीं चला, वो बस अपने कुरान में गुम हो गई। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।